Hi students, myself Sanjay Tiwari. Welcome to Maths on Track सबका गणित. In this सबका गणित. In this we talk lot of tricks about different exams like JEE, CAT, NDA, KVPY and all other engineering competitive exams. Today I am going to take lecture on class 12 topic. In previous video I talked about tangents and normal. जैसा मैंने promise किया था, I will come with next video. Today I am going to take application of tangents. What are the application of tangents? Tangents अगर आपने पढ़ा है तो उसको क्या क्या यूज कर सकते हैं. The best application of tangents. Tangents are lines. ये मैंने कहा था tangents and normals. Tangents are lines, normals are lines. तो using concept of tangents, tangents are lines. I will talk about angle of intersection between two curves. तो what will be the process? क्या होगा steps if I talk about angle between two curves? So I have written the steps. Then I will take some numerical. Very important topic for JEE Mains exam also and other exams like KVPY, NDA, BITSAT, COMED and all other competitive exams. Even in board, 12th board, you will find such type of numericals. दो कर्व दिया रहेगा. सपोज माई हैंड, दिस इज वन कर्व, दिस इज अदर कर्व, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है. एट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन व्हाट इज द at the point of intersection what is angle between two curves. Angle between two curves is same as angle between their tangents. ये ध्यान रखना. तो let us look the step for two curves. Two curves are always given. अगर कर्व दिया ही नहीं होगा तो क्या करोगे? You will not do anything. तो two curves are given. Suppose I call first curve as C1, second curve as C2. Equation of first curve is f of xy equal to 0. Second curve g of xy equal to 0. They are functions of x and y. I call C1 and C2. This is first requirement, first step. Then second step, what you will do? So first step, two curves are given. I am drawing diagram also. Suppose this is diagram. This is curve C1 and this is curve C2. So these two curves are given. They must intersect each other. ये requirement है. Intersect ही नहीं करेगा तो एंगल क्या निकालोगे? So find point of intersection P. I call this point of intersection as P. P is x1, y1. How you will find point of intersection? Solving C1 and C2. X को eliminate करोगे या y को करोगे. Either you will subtract or you will add using basic laws of algebra. दो कर्व को फटाफट सॉल्व करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. आई कॉल दैट एज पी. अब सेकेंड स्टेप, व्हाट इज सेकेंड स्टेप? एट पी वी हैव व्हाट? फोर कर्व्स C1 एंड C2. फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे फटाफट. तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx, p का कोऑर्डिनेट रखोगे, उसको कहोगे m1. C1 डिफरेंशिएट कर्व C1 विथ रिस्पेक्ट टू x. तो फर्स्ट डेरिवेटिव यू कॉल दिस m1. सेकेंड कर्व C2, again you differentiate second curve with respect to x. उसमें p रखोगे, you call that m2. m1 and m2 are slopes of tangents for first curve and second curve respectively. तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. this is tangent. किसका टेंजेंट हुआ? C1 का टेंजेंट हुआ, टच कर रहा है. अगेन टेंजेंट एट C2. So this is tangent at for C2. किस पॉइंट पे निकाल रहे हो? एट द पॉइंट P. तो फटाफट ये दो लाइन आपको मिल गया. फर्स्ट डेरिवेटिव, आई हैव यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स. अब ये एंगल निकालोगे. यू हैव टू फाइंड एक्यूट एंगल जनरली. तो देखो नेक्स्ट स्टेप, यूज tan थीटा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2. मॉडुलस ले लेना एक्यूट एंगल. आई कॉल दिस एक्यूट एंगल बिटवीन टू कर्व्स. अब एक्यूट एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज एंगल बिटवीन टू कर्व्स. तो ये आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े कोऑर्डिनेट में. दिस फॉर्मूला यू नो.
tan theta m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. मॉडुलस ले लेना, थीटा निकाल लेना. दैट थीटा इज एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एक्यूट एंगल. ऑब्ट्यूज पूछे तो पाई में उसको सब्ट्रैक्ट कर देना. तो वेरी इजी. देयर आर ओनली फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप. 4 स्टेप्स आर ओनली देयर. तो आपको बेसिकली यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव. ओके, तो पहला रिक्वायरमेंट है पॉइंट निकालोगे. और ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर. आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग टू कर्व्स. सपोज कर्व इज y इक्वल टू sin x and second curve is y equal to cos x. Find angle of intersection of these two curves. फटाफट कैसे निकालोगे? लुक एट द प्रॉब्लम. दो कर्व दिया हुआ है. अगर मैं डायग्राम रफ स्केच ड्रॉ करता हूं देन आई विल सॉल्व. तो रफ स्केच में ड्रॉ करने जा रहा हूं. सपोज मैंने y इक्वल टू साइन एक्स को ब्लैक से ड्रॉ किया एंड y इक्वल टू cos x को मैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर रहा हूं. सपोज मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज पाई बाय 2, यू नो दिस इज 0 एंड दिस इज पाई. एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट दिस पॉइंट. अगर दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, अगर सिमेट्रिकल है तो यू मस्ट फाइंड एंगल एट एनी वन ऑफ द सिमेट्रिकल पॉइंट्स. किसी एक पॉइंट पे निकालोगे, इट विल बी सेम एट ऑल अदर पॉइंट्स. सारी जगह एक जैसा होगा. तो ये दोनों कर्व एक दूसरे के अबाउट सिमेट्रिकल होता है और पाई बाय 4 पे सब्ट्रैक्ट करता है. तो पाई बाय 4 के क्या क्या करता है? पाई बाय 4 पे दे इंटरसेक्ट. तो पहला रिक्वायरमेंट क्या होगा? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज फाइंड पी. पी कैसे निकालोगे? फटाफट. पी इज व्हाट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पी कैसे निकालोगे? तो इसको मैंने कहा साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स रखोगे. ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है. वी हैव टेन एक्स इक्वल टू 1. डिवाइड कर दो फटाफट. जनरल सॉल्यूशन जानते हो, n पाई प्लस पाई बाय 4 जनरल सॉल्यूशन. n 0 रखोगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए. n 0 रखोगे तो x का वैल्यू पाई बाय 4 आएगा. अब पाई बाय 4 जो है तुम्हारे पास p पे कोऑर्डिनेट निकालोगे. y1 y फर्स्ट कर्व के लिए स्लोप निकालोगे. m1 क्या होगा? dy बाय dx. और p का कोऑर्डिनेट रख दोगे. p मैंने कहा x पाई बाय 4 रखोगे. फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट करोगे, cos x आएगा. x पाई बाय 4 रखोगे तो क्या मिलेगा? तो यू विल गेट दिस एज 1 बाय रूट 2. ओके. c2 में रखोगे. वी हैव कर्व c2 में रखोगे, डिफरेंशिएट कर. सो अगेन वी विल फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व c2 सेम एज c1. तो आई एम राइटिंग हियर for c2 I will take dy by dx by dx at x equal to pi by 4. So we have this is dy by dx. So derivative of second cos is what? Minus sin x. So you will put x equal to pi by 4. X equal to pi by 4 रखोगे, not pi by 2. So pi by 4. So we have this is minus 1 by root 2. I call this m2. Slope of tangent. Generally m1 and m2 are used as slope of straight lines. So m1 is slope of first tangent, m2 is slope of second tangent. First curve, second curve. Now use the formula tan theta is equal to modulus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. Very easy. This is simplest formula. Now you will put here, this implies tan theta is equal to first is 1 by root 2 minus m2. So again this is plus 1 by root 2 because minus minus becomes plus, divided by 1 minus 1 by root 2 and this is plus and minus 1 by root 2. So solving this we find tan theta is equal to, this is
1 by root 2, 1 by root 2. So we have this is 2 by root 2. So we have this is root 2 divided by, and this is 1 minus half. So we have half. So actually this is 2 root 2. So we will say tan theta. Tan comes to this side. So this is, जब tan इधर आएगा तो it becomes tan inverse of 2 root 2. So this is your answer. Angle between sin x and cos x in the first quadrant. Power 4 is here. So this is the process to find angle between two curves. What are steps? First step, find point of intersection. पहला step. दूसरा, at the point of intersection, first curve differentiate, put that point. Third step, use this formula, tan theta is equal to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 modulus. So this is the way to find angle of intersection between two curves. Very easy. I will take second numerical using same concept, and then I will tell some special cases for JEE, KVPY and other exams. So look at the second problem of this concept. Now second problem of this angle of intersection, look at the problem. Find angle of intersection of two curves. Two curves are always given. ऐसा नहीं कि एक ही कर्व होगा और somebody says find angle between curves. One curve is given. Generally minimum two curves are required. ये नहीं कि किसी ने कहा या sin x का एंगल between two curves निकालो. आपको ये illogical question. So angle of intersection always between two curves. लड़ने के लिए भी दो आदमी मिनिमम चाहिए, अकेले तो लड़ नहीं सकते. तो for fighting at least two persons are required. उसी तरीके से एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है तो नजदीक आएगा ही. तो नजदीक जब आएगा तो वहां जो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जहां दोनों फाइट करने के लिए जमा हुआ. और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम लोग कोऑर्डिनेट फटाफट निकालेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन का लॉजिक यूज करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स. वेरी इजी. बस आपको ध्यान रखना है कभी कभी जो कॉमन पॉइंट निकलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन सम ऑफ द न्यूमेरिकल से हिट एंड ट्रायल लेना होगा. जेईई मेंस और जेईई एडवांस में हो सकता है अलजेब्राइक इक्वेशन नहीं हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो. तो हिट एंड ट्रायल से फटाफट ऐसा सवाल numericals are created in such a way that you use hit and trial method, find x abruptly, फटाफट उसको चेक किए और आंसर निकाल दिए. तो आई एम टेकिंग सेकंड न्यूमेरिकल. दिस इज वेरी गुड न्यूमेरिकल. पहला रिक्वायरमेंट, आई एम ड्राइंग रफ स्केच. देखो कितना बढ़िया कर्व है. तो ये x एक्सिस हो गया. इसके अबाउट मैं पहले कर्व को ले रहा हूँ. ये पहला कर्व पैराबोला है लेकिन मॉडुलस है. मॉडुलस ऑलवेज अबाउट x एक्सिस होगा. तो दिस इज आपको ये कर्व जो है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 है. अगर इस पॉइंट को देखोगे तो पुट दिस इज इक्वल टू 0. सो इसको 0 करोगे तो ये विल गेट दिस इज माइनस रूट 3 एंड दिस इज प्लस रूट 3. सो दिस इज सेकेंड कर्व मैंने ड्रॉ किया है. नाउ लुक एट द फर्स्ट कर्व. फर्स्ट कर्व इज ऑल्सो ऑफ द सेम नेचर. केवल उसका क्या है कि जो x axis पे जहां मिलेगा that point is different. So this is second curve. So this is second curve. Y is equal to modulus of x square minus 1. तो x axis पे कहाँ मिलेगा? This is minus 1 and this is 1. Law of symmetry. This curve is symmetrical about y axis. This is y axis. How many points of intersection? So we have point of intersection. This I call P and this I call Q. So P and Q are symmetrical. P पे निकालो. Find angle of intersection at any one of the point. Angle at P is same as angle at Q. So मैं एक रफ स्केच ड्रॉ कर दे रहा हूँ. दोनों का अपना अपना टेंजेंट मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ डॉटेड. So this is tangent
एंड दिस इज ऑल्सो टेंजेंट। टेंजेंट दोनों कर्व का मैंने ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट कर्व के लिए मैंने कहा आई कॉल M1, फर्स्ट कर्व जो है दिस इज रेड, तो इसके टेंजेंट को मैंने कहा M1 एंड सेकेंड कर्व के टेंजेंट का स्लोप को मैंने कहा M2। तो स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स को M1 M2। इफ आई कॉल M1 एंड M2 you must think I am telling about slopes of tangents. So M1 M2 I have to find this angle theta, acute angle. So I think from the diagram it is clear, angle at P is same as angle at Q. Now we will proceed. पहला find P. How to find point of intersection P and Q? कैसे निकालोगे? तो दोनों को इक्वेट करोगे, सॉल्व करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3। मॉडुलस इक्वालिटी, वेरी सिंपलेस्ट मॉडुलस। इफ यू रिमूव मॉडुलस तो एक बार तुम्हें प्लस लेना पड़ेगा और एक बार लेना पड़ेगा तुम्हें माइनस लेना पड़ेगा। यहां से सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यू डू नॉट गेट एनी सॉल्यूशन। एंड फ्रॉम हियर वी हैव 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से देख सकते हो दिस इज 4, सो वी हैव x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ p इज व्हाट? √2। पुट √2 इन एनी कर्व, यू विल फाइंड x रखोगे तो यू विल फाइंड y। किसी कर्व का x मिलेगा तो y मिलेगा। सो दिस इज 1 एंड q पे का कोऑर्डिनेट लोगे लॉ ऑफ सिमेट्री से, दिस इज माइनस √2, 1। सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ एट p, मैं फटाफट लिखने जा रहा हूं। एट p मैं निकालने जा रहा हूं दोनों का अपना अपना स्लोप M1। हाउ टू फाइंड M1? तो dy/dx निकालोगे पहले कर्व का। हाँ देख लो, √2 के राउंड ये नंबर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो पहले सिंप्लीफाई करोगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy/dx निकालोगे। सो वी हैव दिस इज 2x और dy/dx में तुम p रख दोगे, p का कोऑर्डिनेट रख दोगे और ये आएगा 2√2। यू विल कॉल दिस M1। क्लियर? नाउ सेकेंड M2 कैसे निकालोगे? फटाफट सेम लॉजिक। एट √2 दिस कर्व, सेकेंड कर्व का देख लो, सिंप्लीफाई करोगे तो √2 रखने से दिस कम्स नेगेटिव, तो मॉडुलस सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर। dy/dx फटाफट निकालोगे तो यू फाइंड माइनस 2x। स्लोप निकालोगे तो तुम्हें मिलेगा dy/dx एट p, तो दिस इज माइनस 2√2 और इसको कहोगे M2। सो दिस इज M2। नाउ यूजिंग द फॉर्मूले, अब एक लाइन आपके पास है, tan थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2। तो दिस फॉर्मूला फटाफट यूज करोगे, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यू हैव दिस इज 2√2 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, और यहां से लोगे 2√2 मल्टीप्लाई करोगे तो 8। सो वी हैव दिस इज 4√2 बाय 7। एक्यूट एंगल तुम्हें निकालना है। सो आंसर ऑफ दिस एंगल मैं यहां लिखने जा रहा हूं। आंसर थीटा इधर जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ 4√2 बाय 7। This is your answer for this numerical angle of intersection between two curves. Very easy steps मैंने बता दिया, दोनों को सॉल्व किया। हाँ यहाँ ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे तुम डिफरेंशिएट करने जा रहे हो यू विल सिंप्लीफाई द मॉडुलस। अगर मॉडुलस को नहीं सिंप्लीफाई करोगे यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट। तो √2 के अराउंड जब मैंने पहले कर्व को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो इट इज पॉजिटिव, तो इट कम्स आउटसाइड विदाउट एनी चेंज। और दूसरे में मैंने √2 रखा तो वो निगेटिव हो रहा है, क्वांटिटी विद इन मॉडुलस, expression within modulus, so negative आ रहा है, that's why I have written 3 minus x square. Now look at the third problem. Find angle of intersection between two curves. I have selected this numerical to convey some important concept between angle of intersection between two curves. Look at the problem. Two curves are y square equal to 4x, y is equal to e का power minus x by 2. What is first curve? तो कोऑर्डिनेट में क्लास 11th यू हैव स्टडीड,
this looks parabola. Parabola heavy, not looks. It is certainly parabola. And this one, this looks or certainly. And this is exponential function. Minus है तो decreasing. So we will draw the diagram of both curves. मैं एक रफ sketch बना रहा हूँ just for more clarity. So this is y-axis. Parabola is like this. ये हो गया y square equal to 4x. You know the parabola. First is parabola. Parabola opening rightward. Symmetrical about x-axis. This is x-axis. Second curve. This curve. This is decreasing curve. Minus e का power minus x is decreasing. तो मैं थोड़ा सा इसको रेड में ड्रॉ कर रहा हूँ. This becomes parallel to x-axis. ठीक है, parallel, very near about x-axis, thin gap. So these two curves certainly intersect at this point P. I call this suppose x1 y1. So I have to find angle. इस point पे तुम्हें क्या निकालना है? Angle of intersection between two curves. Angle of intersection between two curves is same as angle between their tangents. बस ये ध्यान रखना, ये नहीं कि कर्व का कह दिया तो तुम कंफ्यूज हो रहे या टेंजेंट नहीं का. तो दिस इज द डायग्राम. नाउ लुक हाउ आई विल प्रोसीड. सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू राइट. क्या करेंगे? P मैंने मान लिया. लेट P इज कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. लेट P x1 y1 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, नाउ dy by dx दोनों कर्व का फटाफट निकालोगे एट P, क्योंकि देखो दोनों को सॉल्व करना है. दिस इज नॉट इजी थिंग. यहां मैंने इन दोनों को सॉल्व करा, मैंने सपोज कर लिया फ्रॉम डायग्राम दे आर इंटरसेक्टिंग एट P. एट P आई विल फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ बोथ कर्व्स. फटाफट मैं निकालने जा रहा हूं. एक को मैंने कहा m1, एक को मैंने कहा m2. m1 dy by dx डिफरेंशिएट करो तो तुम्हें मिलेगा दिस इज 2 by y. और जब तुम इसमें p का कोऑर्डिनेट रखोगे तो यू विल फाइंड दिस एज m1 इज इक्वल टू 2 by y1, क्योंकि p का कोऑर्डिनेट मैंने कहा x1 y1 है. क्लियर? डिफरेंशिएट करो और p का कोऑर्डिनेट रखो. m2 मैं लिखने जा रहा हूं फटाफट. डिफरेंशिएट करोगे तो वी हैव दिस इज dy by dx. डिफरेंशिएट करो तो दिस इज माइनस हाफ e का पावर माइनस एक्स बाय 2 और इसमें p रखोगे सो यू विल गेट माइनस हाफ तो रहेगा ही e का पावर माइनस x1 बाय 2. x1 बाय 2 ये पावर में है. नाउ फ्रॉम हियर इसमें x1 रखोगे तो y1 आएगा. सो दिस इज माइनस y1 बाय 2. सो दिस इज द ट्रिक यू मस्ट अप्लाई हियर. क्या ट्रिक मैंने यूज किया? यहां देखो y1 के टर्म में आई एम गोइंग टू फाइंड m2 इन टर्म्स ऑफ y1. कैसे? x1 y1 यहां रखोगे तो यू कैन रिप्लेस e का पावर x1 by 2 माइनस बाय y1. सो फ्रॉम हियर यू कैन से m1 m2. फटाफट देखो, प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 इज व्हाट? माइनस 1. अगर दो कर्व का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स एट द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स अगर माइनस 1 आ जाए तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंगल इज व्हाट? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो दीज टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. or you can say two curves intersect each other orthogonally. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अगर दो कर्व अगर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर दोनों का एंगल बिटवीन टेंजेंट्स या कह सकते हो, और इन अदर वर्ड्स दोनों का अपना अपना टेंजेंट परपेंडिकुलर हो जाए तो यू विल से two curves are orthogonal to each other. So two curves intersect each other orthogonally
implies angle between their tangents is 90 degree at the point of intersection. This is very important concept you can derive from the basic formulae जो मैंने लिखा था. कैसे? I am writing in red on this side. tan theta मैंने कहा था m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. अब यहां से खुद ही देखो, m1 m2 अगर -1 हो जाए, अगर m1 m2, if m1 m2 is equal to -1, what does this mean? What is meaning of this? This means tan theta is undefined, and tan theta is undefined. What is meaning of this? Theta is 90 degree. By using basic trigonometry, tan theta is undefined at odd multiple of pi by 2. So theta is 90 degree. So two curves intersect orthogonally. This is very important concept you can use in coordinate geometry also, and in this chapter also. Angle of intersection between two curves. So we will say two curves are orthogonal to each other, or they intersect each other orthogonally, or angle between tangents is 90 degree, or angle of intersection between two curves is 90 degree. Okay? और अगर m1 m2 बराबर हो जाए तो दो कर्व एक दूसरे को टच करेगा. अगर मैं यहाँ एक और कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, अगर m1 m2 बराबर आ जाए तो यू विल से two curves touch each other at the common points. Two curves touch each other. Okay, I think this is clear. अगर m1 m2 at the point of intersection slope of tangents are equal, तो from here देख लो m1 m2 बराबर होगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, और जब 0 होगा तो two curves touch each other, और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो two curves intersect each other orthogonally. I think this is clear. Now I am taking next question, and that will clear most of the concepts. Now look at the fourth question. Very good question for JEE Mains. KVPY आपको एडवांस में भी यूज होगा. Different types of examination. I will form this as a shortcut trick also. Look at the problem. Find the condition that the curves देखो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1 पहला कर्व है, एंड सेकेंड कर्व a डैश x स्क्वायर प्लस b डैश y स्क्वायर इक्वल टू 1 मे कट ईच अदर ऑर्थोगोनली. यू हैव टू फाइंड द कंडीशन. तुम्हें कंडीशन निकालना है. ये देखो कंडीशन. ओके, और कंडीशन किसका निकालना है? ऑर्थोगोनली का. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्रॉब्लम फॉर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो. वहां को कंडीशन फाइंड आउट करना होगा. आई विल यूज दिस कंडीशन एज ए शॉर्टकट ट्रिक फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन. तो लेट अस प्रोसीड. हाउ? तो देखो मैंने एक डायग्राम बना दिया, दो कर्व दिया हुआ है. सपोज दिस इज C1 एंड दिस इज C2. C1 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने P कहा, P पे मैंने दोनों का अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंस ड्रॉ किया. आई कॉल फर्स्ट एज m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, सेकेंड एज m2 स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सेकेंड कर्व. तो m1 m2 तो जानते हो कॉमन लैंग्वेज में यूज होता है स्ट्रेट लाइन में स्लोप्स ऑफ लाइंस के लिए. तो हियर वी आर यूजिंग सेम एज स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स के लिए. अब देखो क्या करोगे. लेट कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P इज x1 y1. मैंने P को सपोज किया x1 y1, P को सपोज किया x1 y1. ठीक है, x1 y1 मैंने सपोज किया. अब देखो दो कर दिया गया है. अब यहाँ तो जान रहे हो वेरिएबल है a b एंड a डैश b डैश तो दिया नहीं है. तो p x1 y1 will satisfy both one. पहले वाले में रखोगे x1 y1 तो you will get this one. सेकेंड में रखोगे you will get this one. इसको बोलेंगे 1, कंडीशन 1. दिस इज कंडीशन 2. सब्ट्रैक्ट करोगे 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट करोगे. a माइनस a डैश एक्स स्क्वायर, b माइनस b डैश y1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर. ठीक है, मैं यहाँ x1 स्क्वायर लिख देता हूँ और यहाँ y1 स्क्वायर, और मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ बिकॉज 1 माइनस 1 इज 0. सो दिस इज कंडीशन 3. I will use this condition 3 for further
सिंप्लीफिकेशन क्या है फर्दर। अब क्या है, दोनों का डेरिवेटिव निकालोगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या मिलेगा फटाफट, 2ax प्लस 2by dy by dx इक्वल टू 0। तो dy by dx x1 y1 रखोगे p का कोऑर्डिनेट, तो तुम्हें क्या मिलेगा माइनस ax1 बाय by1। ये हो गया फर्स्ट लाइन का स्लोप, फर्स्ट टेंजेंट का स्लोप। सिमिलरली सेकेंड में बाय लॉ ऑफ सिमेट्री ए की जगह मैंने ए डैश कर दिया, बी की जगह मैंने बी डैश कर दिया टू सेव द टाइम। तो आई कॉल दिस m2 स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सेकेंड कर्व। तो m1 m2 फटाफट मैंने निकाल लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम m1 m2 इज इक्वल टू -1। व्हाई? टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली। अब m1 m2 -1 रखोगे तो यहां से क्या मिलेगा बच्चों, देख लो। सो वी हैव दिस इज a डैश x1 स्क्वायर अपॉन b डैश y1 स्क्वायर इक्वल टू -1, और इसको सॉल्व करोगे a डैश x1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b डैश y1 स्क्वायर, और इसको क्या कहोगे 4। फटाफट देख लो, दिस इज फोर्थ वन। अब ये थर्ड एंड फोर्थ से ही आपको कंडीशन निकालना है। कंडीशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम x1 y1। x1 y1 तुमने एज्यूम किया है, उसमें x1 y1 नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग 3/4। तो देख लो यहाँ 3 का लेफ्ट हैंड साइड, 4 का लेफ्ट हैंड साइड, 3 का राइट हैंड साइड, 4 का राइट हैंड साइड, फटाफट डिवाइड करोगे तो यू विल गेट a माइनस a डैश डिवाइडेड बाय a डैश इज इक्वल टू b माइनस b डैश अपॉन b डैश। सिंप्लीफाइंग दिस you will get as 1 minus a 1 minus b is equal to 1 minus a dash 1 by b dash. So this is the required condition। मैं इसको रेड से मार्क कर दे रहा हूं। So this is the required condition। तो what is required condition? That these two curves intersect each other orthogonally। This is required condition। 1 by a minus 1 by b is equal to 1 by a dash minus 1 by b dash। तो फटाफट बोर्ड के एग्जाम में इस तरीके से दिखा दो। नाउ फॉर जेई एग्जाम, जेई एडवांस एग्जाम, केवीपीवाई एग्जाम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, आई कैन कन्वर्ट दिस न्यूमेरिकल इनटू शॉर्टकट ट्रिक। कैसे? कोऑर्डिनेट में यूज कर सकते हो। ये पहला कर्व है, ये दूसरा कर्व है, लुक एट टू कर्व्स। आप इसमें इलिप्स एंड हाइपरबोला फिट कर सकते हो। कैसे फिट कर सकते हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फटाफट देख लो। अगर तुमने एक कर्व ले लिया, सपोज एक्स स्क्वायर बाय, मैं एक न्यूमेरिकल आपके लिए फॉर्म करने जा रहा हूँ, 5 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। दिस इज फर्स्ट कर्व, यहाँ एक्स स्क्वायर समझ लेना। एंड दूसरा कर्व लेने जा रहा हूँ बच्चों, एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1। अब किसी ने कहा दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज ऑल्सो इलिप्स। अब किसी ने कहा फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स थ्रू इलिप्सिस इन कोऑर्डिनेट में। फटाफट देखो, यहाँ 1, ये देखो नीचे 5 है, नीचे 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है। 1 by a रखोगे, 1 by a, तो यहाँ से 1 by a रखोगे तो 5 आएगा। तो फ्रॉम दिस कंडीशन वी हैव 5 minus 4 is equal to 6 minus 5। They are equal. So what is angle between these two ellipses? 90 degree. So you can create many numericals like ellipse, ellipse, ellipse hyperbola। एक जनरल तरीके का सवाल आपको आपके बुक में भी दिया होगा, मैं केवल बता दे रहा हूँ। ये दोनों कर मैं रेड से केवल लिखने जा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड कर्व एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1। ये दोनों कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ऑर्थोगोनली। व्हाई? बिकॉज यूजिंग दिस कंडीशन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, लैम्डा 1 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूजिंग दिस कंडीशन। और राइट हैंड साइड में भी मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई थिंक
you must have understood the concept. Such type of problems can be used in coordinate geometry also. Ellipse, 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 hyperbola, hyperbola, hyperbola. Apply this condition. I think I have explained the angle of intersection between two curves in very clear cut way and nice way and simplest way also. Keep watching the video of Maths on Track सबका गणित. रिजल्ट तो आ ही गया है, देख रहे हो 12th एग्जाम का मैथ्स ऑन ट्रैक सबका गणित में मैंने टॉपर्स का कुछ आपको वीडियो भी अपलोड किया. तो फ्रॉम यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ मैथ्स ऑन ट्रैक बोकारो टॉपर्स वीडियो मैंने अपलोड किया है. उससे यू कैन लर्न हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम एंड हाउ यू गेट द मैथमेटिक्स इन मैथ्स ऑन ट्रैक सबका गणित. स्टूडेंट्स हैव टोल्ड देयर एक्सपीरियंसेस इन वेरी क्लियर कट वे. तो वहाँ से आप लर्न कर सकते हो कि कैसे तैयारी करनी चाहिए. तो एक चीज़ और मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड और एनी एग्जाम. आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो क्लियर कट और लेवल भी होना चाहिए. नहीं कि एक दो क्वेश्चन किया लेवल नहीं अचीव कर रहे हो. फॉर लेवल्स यू कैन सॉल्व आईटी क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस ईयर्स का आर्काइव आता है. फ्रॉम दैट देयर यू कैन गेट कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो. इस तरीके से तुम अपना मैथमेटिक्स पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बिकॉज आई एम बॉदर्ड अबाउट मैथमेटिक्स ओनली. तो कीप वॉचिंग द वीडियो ऑफ मैथ्स ऑन ट्रैक बोकारो सबका गणित. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.